Happiest morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Hi, good Good morning, morning. Dipti ma'am. गुड मॉर्निंग। आप Good मुझे morning, मैम मत Dipti बोलिए, मैं ma'am. आपकी बिल्कुल मैम नहीं Good morning, हूँ। ma'am. गुड Good मॉर्निंग morning. मैम। दीदी मेरा नाम दीप्ति है, कृपया करके। कैसी रही बहनों के साथ रात आपकी? रात दिन रात तो जल्दी हो गई थी। अच्छा, बैठी हुई है इधर अटेंड 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 अटेंडिंग द Good सेशन। morning, ma'am. So is मैंने का ऐसा है that since it's a day in Canada, so she was fully awake at 4 o'clock, and in the afternoon, evening when I was fully charged, she was absolutely drowsy and sleeping. So I think it'll take a while for the system to reset. yes, jet lag. Yeah, a lot of So I think 2-3 दिन लगेगा अभी होने में, because I think 5-6 years का gap आ गया in coming to India. So because of COVID and everything. Yeah. So we'll just quickly start. There's a lot of content to be done today in the magic book. So yes, Bitti ji, आप बिल्कुल ready रहिए पढ़ने के लिए, और आज बहुत सारा पढ़ना है। So is your life magical? So this topic is about like अपना जिंदगी को एक barometer की तरह हम रखते हैं। Barometer as in like it's a measure that कहाँ हम life में stand कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ कोर्स दैट हमारी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अगर ब्रेकडाउन है या अगर कुछ ऊपर नीचे है, गड़बड़ है, दैट मीन्स वी नीड टू मेक अ ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट एरिया। उसमें हमको ग्रेटिट्यूड ज्यादा देने की जरूरत है। सेकेंड एरिया होता है लाइक 4 व्हील्स ऑफ द कार इज हेल्थ। सो अपने हेल्थ के एस्पेक्ट में कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, और जिस भी चीज में कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हमारे हो सकते हैं जो गड़बड़ है, दैट everybody is noticing and we also know that we need to change, है ना। Then in terms of weight, in terms of your fitness, in terms of the systems inside the body, digestive system, respiratory system, circulatory system, कहीं कुछ गड़बड़ है, immunity low है, सो वहां हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रॉन्डा बर्न और जो बाकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, योर लाइफ हैज टू बी 100% गुड, यू नो, लाइक इन एवरी एस्पेक्ट। सो देन थर्ड बैरोमीटर हमारा है, हमें देखना है मनी वाइज का है, क्या हमको बहुत स्ट्रगल रहता है पैसे का, एंड समथिंग दैट इवन बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होती है, money is not flowing constantly to us, or what, like we have to gauge that area. And fourth of course is career, जो भी हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, लिविंग है, आप लोग की फैमिली का अगर बिजनेस है कोई, या कहीं पे भी जहां पे मतलब सब स्मूथ चल रहा है, वो थ्राइव कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, बिकॉज ये चारों एरियाज को थ्राइव एंड फ्लरिश करने की जरूरत है। अगर ये नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वी नीड टू एक्चुअली इंक्रीज। सो ये बैरोमीटर होता है हमारा लाइफ का, जैसे थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर देखने के लिए, वैसे इज योर लाइफ मैजिकल, क्या हमारी लाइफ वाकई जादुई है, क्या मैजिकल है, क्या हमारे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तो ये हम देख के फिर उसके बाद जज करेंगे कौन से एरिया में हमें बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है। सो यस बिटी जी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। Good morning, everyone. Good morning. Is your life magical? You can tell right now. How much you have actually used gratitude in your life? Just take a look at all of the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of your life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experiencing the magic as a result. And wonderful are due to a lack of gratitude. I think It's आपका a वो simple चला, fact. can you just read that from any areas again? Any areas Any, that are not any abundant. areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. It is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationship, more joy, more money, and the advancement of your job, career, and or businesses. To receive, you have to give. It is the law.
Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. The bottom line of ungratefulness is that we are not grateful, we are taking. We are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So, if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Yeah. So as I had mentioned earlier, like if your life truly magical, कि सारे areas हमारे life के abundant हमको करने हैं, सब में हमको magics देखने हैं, सब में miracles देखने हैं. So अगर वो नहीं हो रहा है या अगर breakdown areas है हमारी life में in terms of कोई भी एस्पेक्ट हो आपका, मतलब 4 मेजर एरियाज आपके लाइफ के होते हैं, विच इज रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी एंड करियर. अगर ये 4 बहुत अच्छे चल रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दैट मीन्स यू आर अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन. सो इवेंचुअली रॉन्डापन यही बोल रही है कि हमको ये सारे एरियाज में 100% हैप्पीनेस चाहिए होती है. ठीक है, ऑफ कोर्स वो आगे जाके एक्सपैंड होगा डेफिनेटली, but that contentment, that joy, that satisfaction, that excitement, that awe-inspiring life, fulfilling life, so that is what we want to achieve. So अगर वो नहीं है किसी एरिया में, इसका मतलब है हम उस एरिया को for granted ले रहे हैं, या फिर हमने बहुत कंप्लेन्स उस एरिया में की हुई हैं. सो वो हमको ट्रांसफॉर्म अप करने की जरूरत है, बिकॉज gratitude has to become a new way of life. That means the way we live, the way like we brush our teeth every day, gratitude has to be like that. So we can't think that how we can move forward without it. Okay, so ab isme last paragraph says it all. To see the magic and cause a radical change to your current circumstances. So radical change is a transformational journey. Okay, agar hame wo dekhna hai, then we have to practice gratitude. So practice ka matlab action point hota hai. So the action point of the life has to be gratitude. It's not that मन में सोच लिया हो गया. It is हमको बहुत practices भी मिलेंगी जो हमको diligently करनी है. जितना ज्यादा हम कर सकते हैं उतना ज्यादा life में radical shift आएगा. And make it our new way of life. So we have to make it our new way of life. So whatever the circumstances, अगर gratitude के tool से कोई चीज अगर आप कर रहे हो तो उसका end result कभी भी खराब नहीं हो सकता. जैसे suppose if somebody is low right now and उसको वो suppose relationship में कुछ breakdown है और वो repair करनी है, heal करनी है, तो gratitude के tool से अगर आप करोगे, एक तो होता है कि उसे बात करो, fight करो, ये करो, ठीक है, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है. जब आप अपने आप को उस जोन में लेके आओगे हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटिट्यूड वाला, उसके बाद जब आप कॉन्वर्सेशन करोगे या टेक्स्ट मैसेज डालोगे तो उसका आउटकम अलग होगा. अगर आप लो लाइफ कंडीशन में हो, यू आर इन अ वरी एंड फियर एंड एंजाइटी एंड एंगर, उसमें जब आप अपना मुंह भी खोलोगे और इफ यू राइट एनीथिंग इट विल नॉट गो अक्रॉस. ओके, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो आप किस जोन में, किस फ्रीक्वेंसी में किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसका आउटकम उसी हिसाब से होगा. यू विल गेट द सेम फ्रीक्वेंसी बैक. दैट इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. इसीलिए कॉन्स्टेंटली कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ, ऑन आवरसेल्व्स. Okay, so if I have a breakdown with someone in a relationship, I will not go and try and talk and heal and repair. I will work on myself first, because मैंने ही तो रेडिएट की थी वो. अभी तक आई होप हमको ये पता लग गया है कि सामने वाला अगर कोई भी सर्कमस्टांस आ रहा है हमारे लाइफ में, तो हमने उसको इनवाइट किया है. कभी ना कभी या तो हमने कोई कंटेंट कंज्यूम किया है, कुछ टेलीविजन शो ऐसा देख रहा है जहां पे बहुत लड़ाई ऐसी होती थी,
और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गया है, ठीक है, या फिर किसी ने हमको अपनी लाइफ की स्टोरी बताई है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह गई है, या कुछ ऐसी चीज हुई थी जिंदगी में, या आपने कुछ पढ़ा है, मे बी आपने मतलब वही कंटेंट कंजम्पशन वही होता है टीवी के थ्रू, या किसी ने आपको बताया है। इसीलिए कहते हैं ना, अपने दुख दर्द बहुत ज्यादा डिस्कस मत किया करो किसी से, ठीक है। जब आप बोल रहे होते हो तो आप उसकी एफर्मेशन कर रहे होते हो। जैसे अगर आप अपनी लाइफ की रियल स्टोरी किसी को बता रहे हो, दैट मेरे साथ ये हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर मेरी मॉम इन लॉ ने ऐसे बोला, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, सपोज अगर, ठीक है, तो वो एफर्मेशंस होते जा रहे हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मे बी अभी फ्लूइड थे, नाउ दे गेटिंग सीमेंटेड एंड यू विल सी मोर ऑफ दैट हैपनिंग इन योर लाइफ। और ज्यादा आप देखोगे उसी चीज को और ज्यादा होते हुए, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं ना, कंटेंट कंजम्पशन आपकी क्या है उस पर बहुत ज्यादा फिल्टर्स लगा के रखो, ठीक है। अगर कोई अपना प्रॉब्लम भी बता रहा है तो आई थिंक हम सब इंटेलिजेंट हैं, एक बार में समझ जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कुछ, अगर ऐसे कि देखो मेरा हेल्थ ब्रेकडाउन चल रहा है, बस हो गया, मुझे पता है कि अगर बोल रहे हो इसका मतलब है हेल्थ आपको बहुत, उसको एक्सप्लेन करके चीर फाड़ के थ्रेड बाय थ्रेड अनवीव करके बताने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज जितनी बार वो वाली एनर्जी रेडिएट होगी, उतना ही ज्यादा एक एक शब्द जो आपने बोला है दैट विल एक्सेंचुएट, वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई होगा। और फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स के साथ कोई चीज बोल ली जाती है तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसीलिए अपने दुख दर्द किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हेल्थ ब्रेकडाउन चल रहा है, बस हो गया, चुपचाप अपने आप पे वर्क करो, अपने ग्रैटिट्यूड लिखो, थैंक यू फॉर माय हेल्थ, थैंक यू फॉर माय लिवर, थैंक यू फॉर माय किडनी, थैंक यू फॉर माय लेग्स, थैंक यू फॉर माय फिंगर्स, थैंक यू फॉर माय आर्म्स। ये करते जाओ और आप देखोगे कि एनर्जी शिफ्ट आ गया है। एनर्जी शिफ्ट जैसे ही हो रहा है, ठीक है, क्वांटम फील्ड अब आपका चेंज हो गया है। दैट मीन्स आपका सेलुलर लेवल पे, क्वांटम होता है सबसे सूक्ष्म कण आपकी बॉडी का, तो उसमें एनर्जी चेंज हो गई है, आपके एटॉमिक लेवल पे एनर्जी चेंज हो गई है। अब आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी को बहुत बड़ा चढ़ा के ये मतलब वो पूरा अपना वेंटिंग आउट आपको करनी है, आप पेपर में कर सकते हो, राइट इट that this is what my situation right now and this is what, like Abraham Hicks की ask and it is given में मैंने ये पढ़ा था कि एक तरफ आप एक पेज का मतलब एक कॉपी के दो साइड्स होते हैं ना, सो ऑन वन साइड you write whatever situation is, that is what is, and on the other side of the page you write what you want it to be like, okay, and that's it. so वो आपकी वेंटिंग आउट भी हो गई और उसी वक्त वो जो नेगेटिव एनर्जी थी आपने लिख भी लिया, आपका दिल भी हल्का हो गया। और जो दूसरे वाले पेज पे आपने उसको ये भी लिख लिया ना, हाउ डू यू वांट दैट सिचुएशन टू बी लाइक, हाउ डू यू वांट इट टू बी लुकिंग लाइक टू यू, आप कैसा उसको देखना चाहते हो। व्हाट इज आपने लेफ्ट साइड ऑफ द पेज पे लिखा, राइट साइड पे अब आप लिखो आप उसको कैसे देखना चाहते हो, ठीक है। तो उसी वक्त वो एनर्जी चेंज हो जाती है एंड सेलुलर लेवल पे वो जो नई एनर्जी आपकी आई है उसके हिसाब से आपको आउटकम मिलना अभी शुरू होगा, ठीक है। सो इसीलिए दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेकिंग, प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड मेकिंग इट योर न्यू वे ऑफ लाइफ। यू डोंट हैव टू लिसन टू अदर सॉफ्ट स्टोरीज ऑल्सो, ठीक है। अगर उसको जिस तरीके से बताना होता है उसको बस वन लाइनर में हो गया, ठीक है। हम सब इंटेलिजेंट इनफ हैं समझने के लिए कि ये है वो है वो है वो है। सोचो कि अगर कोई डिटेल में बता रहा है तो उसके दिमाग में कितनी ज्यादा स्टोरी चल रही होगी, है ना, फिर उसकी लाइफ कैसे अच्छी होगी। तो ये एक्ट ऑफ कंपैशन होता है कि मुझे नहीं सुननी आपकी कहानी, ये एक्ट ऑफ कंपैशन होगा क्योंकि आप अपने आप को तो बचा ही रहे हो उस सेम चीज को एब्जॉर्ब करने से, आप उसकी जिंदगी को भी बचा रहे हो, है ना। अगर वो अनरेवल करके आपको पूरी स्टोरी सुना रहे हैं, आप उसकी जिंदगी बचा रहे हो क्योंकि उसके मन में ऑलरेडी चल रहा है और वो और बखान कर करके बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ी कहानी बना के वो आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट मीन्स वो एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव है उनकी लाइफ में, अब आपकी भी हो गई, बिकॉज सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, है ना। सो सेम एनर्जी में आप भी उसके कैंपस रेडार में आ जाओगे एंड देन आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में भी वही चीज हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, कोई अपनी बीमारी मुझे इतनी डिटेल में बता रहा था, विद इन अ वीक मुझे वो सेम प्रॉब्लम हो गई। कैन यू बिलीव इट, लिटरली हैड टू बी इन द हॉस्पिटल, सेम, मतलब बिकॉज इतने ज्यादा इमोशन थे एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आप एम्पैथेटिक तो होते ही हो ना, मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि कोई आपको पूरी कहानी बता रहा है एंड यू डोंट
You can't, I mean, you can't make a wall like that, although we can all try and be, like protect ourselves, but you can't make a wall. Even if it was that कहते हैं 17 seconds में body का momentum and aura change हो जाता है, and 17 seconds में subconscious mind absorb कर लेता है, तो वो तो शायद almost 20 minutes की कहानी होगी, ठीक है? And I was thinking about it also later, irrespective of what I was telling myself. मतलब मैंने भी अपने दिमाग में filters लगाए हुए, बट मैं बाद में सोच रही थी कि उसके बारे में, सो वो और ज्यादा सीमेंट हो गई और मुझे एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आ गई। तो इसीलिए वो एनर्जी, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? अपनी लाइफ में भी मेक ग्रैटिट्यूड योर वे ऑफ लाइफ। अगर इस तरह की चीजें हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मेरे ये लाइफ विल नेवर बी, लाइक इट विल नेवर मूव फॉरवर्ड। So it's very, very important for all of us to realize that, like don't make those patterns in your life. और patterns बने हुए हैं तो कितनी beautiful चीज होती है subconscious mind की, कि आप उन patterns को 100% transform कर सकते हो। मतलब 100% आपके जो पुराने patterns हैं, hatred के, anger के, bad relationships के, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के, नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के अगर बने हुए हैं, है ना, अगर वो नेगेटिव पैटर्न्स लाइफ में बने हुए हैं, सो ह्यूमन बीइंग की ब्यूटी होती है कि वो नेगेटिव पैटर्न्स बहुत आराम से रिप्लेस हो जाते हैं जब आप उसकी जगह पे एक नया थॉट इम्प्लांट करते हो, ठीक है? सो नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे कि कैसे थॉट प्लस इमोशंस, दे वर्क लाइक मैजिक इन आवर लाइफ. That's why we say visualization and all that, na? Because उसमें emotional, feel it. Feel how would it feel to be like that. Feel that 100% आप healthy हो गए हो या आपका body weight, ideal body weight हो गया है. अब फील करो कि आप कैसे कपड़े पहन रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो, लोगों की आवाज सुनो कि वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, people are looking at you, turning back and looking at how beautiful or how good your body looks. You're feeling so full of energy all the time. You are walking miles and miles and not getting exhausted. You have so much of strength and stamina. है ना? ये सारी चीजों के बारे में सोचो and then feel good and feel grateful about it. That is the way. ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, तो फिजिकल अपीयरेंस का एग्जाम्पल, ठीक है? यही चीज करियर में, यही चीज रिलेशनशिप्स में, और यही चीज मनी में अगर हम करते रहेंगे, लाइफ विल बिकम ब्यूटिफुल. सो वी हैव टू मेक दिस एज अ पैटर्न. सो अभी हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मैजिक फॉर्मूला. हाँ जी. The magic formula. Knowledge is a treasure and practice is the key to it. Ibn Khaldun al-Makdumi, scholar and statesman. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. And first, you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become the two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The magic formula. 1. Deliberately think and say magic words, thank you. Second, the more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. Third, the more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1-for-1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the results in your life will expand to be equal to your feeling.
The truer the feeling, the more sincerely grateful you are, and the faster your life will change. When you discover how little practice it takes, how easy it is incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical results for yourself, you will never want to return to the life you used to live. If you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. या सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको बहुत अच्छे से समझ आ गई है तो. सो मैजिक फॉर्मूला बताया हुआ है कि फॉर्मूला क्या है अपनी जिंदगी में जादू और चमत्कार लाने का. इफ यू रियली वांट टू क्रिएट मैजिक्स एंड मिरेकल्स इन योर लाइफ, व्हाट इज द फॉर्मूला? सो इट सेज नॉलेज डेफिनेटली ट्रेजर है. ठीक है, नॉलेज डेफिनेटली ट्रेजर है. It is like diamonds and golds which are kept in the cupboard, inside in the locker and inside the locker. Okay, but till the time you don't wear it, उसकी कोई importance है. पैसा हमारे पास बहुत हो सकता है, लेकिन अगर पैसा हम जोड़ के रखते जा रहे हैं लेकिन फटे हुए कपड़े पहन के रहते हैं, अगर उस पैसे को हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई फायदा है ना? वैसे ही नॉलेज इज डेफिनेटली ट्रेजर है, बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. लेकिन नॉलेज को लेके उसको प्रैक्टिस करना ये बहुत जरूरी होता है. पुट इट इनटू प्रैक्टिस. जो टीचिंग्स हमारी है, जब हमारा क्रूशियल मोमेंट आता है कभी भी लाइफ में, प्रॉब्लम्स या जो भी, क्या हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं? अगर प्रैक्टिस करते हैं तो लाइफ विल नॉट बी द सेम अगेन. इट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल, प्रॉस्परस, अबंडेंट, हेल्दी, हैप्पी, सेलिब्रेशन एंड मोर. ठीक है, लेकिन अगर क्रूशियल मोमेंट में हम गिर जाते हैं, हमें लगता है अरे क्या करना, ये सब बेकार, ये तो लॉ है, अब ये बेकार चीजें हैं, क्या है, ये तो लॉ है. इट्स लाइक ग्रेविटी. इट्स लाइक जब सूरज आता है तो रोशनी होती है. इट्स अ लॉ. whether we believe it or we don't believe it, it is always working in our life. Okay, so इसीलिए putting these teachings into everyday practice is what will change the life. Very very important sentence. And then it says, ये जो दो words हैं thank you, ये दुनिया की सबसे बड़ी prayer है. अगर यही चैंटिंग करें हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो हमारी लाइफ में फंडामेंटल चेंजेस आने लग जाएंगे. जैसे पावर बुक में हमने पढ़ा था, द बिगेस्ट प्रेयर इन दिस वर्ल्ड इज 2 words, थैंक यू. So this prayer, if we keep doing, we will see life opening up in front of us and universe will have some amazing things to offer. Okay, so इसमें ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये शुरू के चैप्टर्स हैं, that to live in gratitude, अगर experience करना है, thank you must become the 2 words you deliberately say and feel more than any other words. Deliberately. ओके, शुरू में नहीं आता है. जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं तो आपको मतलब नई दिल से नहीं निकलता है थैंक यू, है ना? स्पेशली अगर किसी ने ट्रबल किया होता है, हेल्थ बहुत अच्छी नहीं चल रही होती है, पैसे का प्रॉब्लम चल रहा होता है, तो दिल से थैंक यू कैसे निकलेगा? थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट हेल्थ, दिल से नहीं निकलेगा ना, बिकॉज उस एरिया में हमारा डाउनफॉल आया हुआ है. लेकिन डेलिबरेटली मतलब अपने आप को फोर्स करके, जबरदस्ती, डेलिबरेटली माइट मीन मेटाफोरिकली जबरदस्ती हमको बोलना पड़ेगा थैंक यू. ऑप्शन ही नहीं है. अगर हमको उस एरिया में चेंज चाहिए या उस एरिया में, अंधेरे वाले एरिया में रोशनी लानी है, हमको डेलिबरेटली बोलना पड़ेगा. और आप बोल के देखो, कभी कभी हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ता लग जाए. इट नॉर्मली टेक्स 21 days of consistent practice to start seeing big results. Okay, according to the law. So whenever there's some shift you want to make in your life, or whenever you want to make some kind of a transformation in terms of habit, maybe, okay, suppose if you say that I want to wake up early and I want to start sleeping early, maximum by 10 o'clock, आपको 21 days करना पड़ेगा. If you have that grit, you will be able to do it for 21 days. और अगर आपने उसको 21 days कर लिया, so you will see a huge transformation in the end result or the outcome. And this is how the law works. Okay, so same thing here.
लगातार करते रहो, ये मत सोचो लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, लैक मेंटालिटी होती है, और लैक मेंटालिटी जब होती है तो आपको आउटकम नजर नहीं आएगा। सो इसलिए करते रहो, ठीक है। यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट कर रहा होता है, चीजें असेंबल हो रही होती हैं, क्वांटम लेवल पे चेंजेस आ रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली कोई पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम है 20 साल की, उसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4 दिन में ठीक हो जाए, जबकि 2 दिन उसमें से नींद ही नहीं खुली आपकी, है ना, मतलब सुना ही नहीं, बिकॉज सेशन नहीं सुनते तो मोमेंटम नीचे चला जाता है। एक दिन भी नहीं लगता, अगर एक दिन भी सेशन मिस हो जाता है ना लाइफ का मोमेंटम नीचे, फिर उसको रीबिल्ड करना शुरू करो, फिर -100 पे जाओ, फिर -10 तक अपने आप को ऊपर तक लेके आओ, फिर -200 में गिर जाओ, फिर माइनस, तो माइनस में ही रहोगे ना। फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चेंजेस आए? ऐसे नहीं आते। बहुत बहुत कंसिस्टेंसी, बहुत ग्रिट, बहुत सॉलिड फर्म डिटर्मिनेशन एंड अपने ऊपर वर्क करने की स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए होती है। जिंदगी में जिन लोगों में, हम हीरो बुक में यही पढ़ रहे हैं ना, देखो उनके कितने डाउनफॉल्स हुए, खाना नहीं मिलता था, हेल्थ खराब थी, पता नहीं एक पर्सन को तो डिसलेक्सिया था, ADHD था, बट क्या वो हारे अपनी जिंदगी से? नहीं, एक दिन भी नहीं उन्होंने ये सोचा दैट वी आर ओके, गिव इट अप नाउ, वी विल नॉट बी एबल टू डू इट अगेन, नहीं सोचा ना, लेकिन करते गए करते गए करते गए। इसीलिए अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट तो करने पड़ेंगे, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। और ग्रैटिट्यूड के साथ रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट एफर्टलेस हो जाता है, यू नो, इट बिकम्स सो इजी व्हेन इट बिकम्स द वे ऑफ लाइफ। इसमें जैसे लिखा हुआ था ना, अगर आपको अब पता लगे कि कितना आसान था जिंदगी को इतना सुंदर करना, तो आप कभी भी पुरानी जिंदगी में नहीं जाना चाहोगे, बिकॉज नाउ यू नो दैट लाइफ इज सो इजी एंड एफर्टलेस। सो दिस इज, इट सेज हियर, थैंक यू इज द ब्रिज फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। सो जो लाइफ है हमारी ड्रीम की, यही एक पुल है जिसपे चढ़ के यू कैन गो टुवर्ड्स योर लाइफ ऑफ अ ड्रीम, और कोई तरीका नहीं है, करके देख लो, ठीक है। सो मैजिक फॉर्मूला में डेलिबरेटली इज अगेन द वर्ड विच इज यूज। डेलिबरेटली मतलब अपने आप को फोर्स करके बोलो थैंक यू, चाहे बोलने का मन नहीं कर रहा है, अपने आप को फोर्स करके बोलो, डेलिबरेटली थिंक एंड से, दिमाग में सोचो और बोलो थैंक यू। और जितना ज्यादा आप डेलिबरेटली थिंक एंड से करोगे थैंक यू, उतना धीरे धीरे हार्ट में चेंज आने लग जाएगा, बिकॉज हमारा ब्रेन हमारे हार्ट से, वेगस नर्व से वैसे भी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो कहते हैं ना हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस, इसी को बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रेन में चल रहा होता है, आप देखना दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है, एंजाइटी चल रही है ना, तो दिल की धड़कन चेंज हो जाती है, मतलब इट बिकम्स फास्टर, ओके। अगर आप ईज में होते हो ना, हार्ट एक्सपैंड हो जाता है उसमें, मतलब जैसे आराम से आप ग्रैटिट्यूड में हो, ठीक है, एकदम से हार्ट में फर्क आता है और हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं दिल बड़ा होता है, उसका दिल बड़ा है, दिल बड़ा जेन्युइनली होता है, उसका साइज बड़ा होता है। तो जैसे ही माइंड रिलैक्स काम होता है, तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है, एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सेंट फैक्टर, और वो रिलैक्सेंट फैक्टर हमारे हार्ट के एक एक नर्व, एक एक मसल को रिलैक्स करता है। 40,000 न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन से हमारी हार्ट की तरफ आते हैं, ये थोड़ी सी साइंस है ना, ब्रेन से, उसमें ब्रेन में तो खैर 8 बिलियन होते हैं, 40,000 उसमें 80 बिलियन, आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग इन्फो, 80 बिलियन न्यूरॉन्स में से 40,000 हमारे हार्ट की तरफ ही आते हैं, और वो इतने पावरफुल होते हैं क्योंकि उनका जो कंडक्शन है, इसीलिए ब्रेन में जैसे ही आपने बोला थैंक यू विल सी दैट ब्रेन के नर्व सेल्स रिलैक्स होने लग जाते हैं, ठीक है, और उनमें पॉजिटिव केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं। वो पॉजिटिव केमिकल की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन हार्ट की तरफ होती है, उसकी वजह से ब्रेन हार्ट कोहेरेंस एस्टैब्लिश होता है, और आप एनवायरनमेंट में यू स्टार्ट सीइंग द चेंजेस, राइट। सो इसीलिए लिखा हुआ है, द मोर डेलिबरेटली यू थिंक एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू, द मोर ग्रैटिट्यूड यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग आफ्टर अ व्हाइल। कैन वी प्लीज म्यूट आवरसेल्व्स? That is why. Then point number 3 is कि जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड को deliberately think and feel करोगे, उतनी abundance रिसीव करेंगे। ये मैजिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ही नहीं है, सबसे आसान काम है जिंदगी के हर सवाल, हर मुश्किल, हर परेशानी का एक ही हल है, थैंक यू। इतना आसान है ना। तो इसीलिए जो चीज आप दोगे वो आप रिसीव करोगे। आपने थैंक यू किसी चीज के लिए बोला, यू विल सी दैट फास्टर योर लाइफ विल चेंज। अगर लगातार करते रहोगे,
स्पीड और बढ़ जाएगी लाइफ को चेंज होने की. इट इज एज सिंपल एज दैट, है ना. सो इसीलिए इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल. अगर आप थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ह्यूज वे में आप प्रैक्टिस करते हो ग्रैटिट्यूड, तो आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंस आएगा. दिस आई कैन गारंटी. ठीक है. एंड इट ऑल्सो सेज दैट इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड अ लॉट एवरी डे, ठीक है, इज द कीवर्ड हियर, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. आपको लगेगा ये हो क्या रहा है मेरे साथ. मतलब दिन दुगनी रात चौगनी बरकत, सक्सेस, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, खुशियां, सरप्राइजेस, अमेजिंग ट्रैवल्स, ठीक है, ये सारी चीज आने लग जाती है, अपॉर्चुनिटीज, और आपको लगेगा ये मेरे साथ कैसा हो रहा है. So this is about the magical book, this current book that we are reading, इसके बारे में. हाँ जी बिट्टी जी, ये किताब A पढ़ी हुई है. magical book. A magical book. As we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words but to live with them. Unquote. John F. Kennedy, 1917-1963, 35th President of the United States. In this book, there are 28 magical practices that have been specifically designed so that you learn how to use gratitude's magical power to revolutionize your health, money, job, and relationships, and to make your smallest desires and your biggest dreams come true. You will also learn how to practice gratitude to resolve problems and transform any negative situation. You will be captivated while you read this life changing knowledge, but without practicing what you learn, the knowledge will slip through your fingers, and the opportunity that you attracted to easily change your life will be gone. To ensure that doesn't happen to you, you need to practice gratitude over 28 days so that you impregnate your cells and your subconscious mind with it. Only then will it change your life permanently. The practices are designed to be completed over 28 consecutive days. This allows you to make gratitude a habit and a new way of life. Practicing gratitude in a concentrated effort over consecutive days guarantees that you will see the magic take place in your life and fast. Within each magical practice is a wealth of secret teachings that will expand your knowledge in a tremendous ways. In each practice, you will understand more and more about how life works and how easy it is to have the life you have dreamed of. The first 12 practices use the magical power of gratitude for what you have now and for what you have received in the past, because unless you are grateful for what you have and what you have received, the magic won't work and you won't receive more. These first 12 practices will set the magic of gratitude into motion immediately. The next 10 practices use the magical power of gratitude for your desires, dreams, and everything you want. Through these 10 practices, you will be able to make your dreams come true and you will see the circumstances of your life magically change. The last 6 practices take you to a whole new level where you will be saturating gratitude into every cell of your body and mind. You will learn how to use gratitude's magical power to help other people resolve problems and improve any negative situation or circumstance you may encounter throughout your life. You don't need to clear your calendar because each of the practices has been specifically created to fit into your everyday life, whether
It is work days, weekends, holidays, or vacations. Gratitude is portable. You take it with you wherever you go, and then wherever you go, the magic happens. If you miss a day, you will most likely lose the momentum of what you have done. To ensure that you don't reduce the magic, if you miss a day, count back 3 days and repeat the practices again from there. Some practices are designed for the morning and others are designed to do throughout the day. So read each day's practice first thing in the morning. Some practices will need to be read the night before because they begin when you wake, and I will tell you when to do this. You might want to read the next day's practice every night before you go to sleep in order to be prepared. If you do, make sure to reread the practice again in the morning. If you don't want to follow the 28 days magical practices consecutively, you can also use them in other ways. You could choose one magical practice that addresses an important subject in your life that you want to change or improve, and you could do that practice 3 days in a row or every day for a week. Or you could do one magical practice a week or two practices a week, the only difference being that it will take you longer to see the changes in your life. Yeah, so this talks about that ये जो 28 days की practice है. So for people who are beginners, इसमें हमको 28 assignments मिलेंगे जो हमको लगातार 28 days करने होते हैं. Because see, this is specially designed because number has got a significance. So 28 practices means 2 plus 8 is equal to 10. 10 is called a number of new beginnings. ठीक है, तो लगातार ये 28 दिन हम करेंगे और हर एक प्रैक्टिस को आप करने की कोशिश करना जितना ज्यादा कर सकते हो. रॉन्डा बर्न ने इसमें लिखा है कि मोमेंटम इस तरह से ही बिल्ड होगा जिस तरह ये प्रैक्टिसेस बहुत साइंटिफिकली डिजाइन है, स्टेप बाय स्टेप. जैसे होता है ना, पहले आप ABCD अल्फाबेट सीखते हो, उसके बाद आप वर्ड फॉर्मेशन सीखते हो, DOG डॉग, CAT कैट, HAT हैट, इस तरह से. उसके बाद वर्ड्स के बाद नेक्स्ट सेंटेंस होता है शॉर्ट सेंटेंसेस, the hat is on the table. उसके बाद long sentences होते हैं. So there is always a step-by-step process involved in learning anything new. Okay, so इस तरह जिस तरह से ये practices भी ऐसे designed है. शुरू में easy हल्की चीजें आएंगी, जो already है हमारे पास, जो पास में था. तो इस तरह से उसके बाद फिर आएगा अपने ड्रीम्स के बारे में, उसके बाद आएगा कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी है. So the first 12 practices हमारी पास्ट जो हमारी जिंदगी में था और है उसके बारे में है. एवरीथिंग, बिकॉज पास्ट में जो कंप्लेन किए उसको कवर अप करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तब हमको पता नहीं था, तब हमने खूब कंप्लेन किए, हमने अपने आप को भी बहुत परेशान किया है. मे बी हमने दिल से उन लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया एंड वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड पास्ट में. तो शुरू में फर्स्ट 12 प्रैक्टिसेस हमारी वही होंगी, पास्ट एंड व्हाट वी हैव राइट नाउ. फिर चैप्टर नंबर 13 से 22 तक विल बी वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स एंड गोल्स एंड डिजायर्स. उसके बाद 23 onwards it is using our life for other things and learning the ways as to how to move forward in life. So इस तरह से डिजाइंड है. रॉन्डा बर्न कहती है अगर आज की प्रैक्टिस आपकी मिस हो जाती है सपोज, तो आपको -3 days जाना पड़ेगा, 3 प्रैक्टिस पीछे और वहां से दोबारा शुरू करो, नहीं तो मोमेंटम बिल्ड नहीं होगा. एक दिन भी ब्रेक लेने का टाइम नहीं है हमको. तो इसलिए हम लोगों के लाइफ में जिनके बहुत सारे ब्रेक्स आए हुए ग्रैटिट्यूड में, इस बार फिर से मतलब रीडिटर्मिन करो कि दोबारा से आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू डू इट. सो आई जस्ट टेक यू थ्रू वन लाइक इनिशियली जो बताया था कि हाउ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिसिंग इज, लाइक उसकी अलग होती है. That as we express our gratitude, we should never forget that the highest appreciation is not to utter words.
सो थैंक यू सिर्फ बोलने में नहीं है, बट टू लिव बाय इट। ऐसे रहो कि जिंदगी में ये पता लगे कि हाँ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। जैसे एक तो होता है कि यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द मनी, सो ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को भी पैसा दे रहे हो, उस वक्त इतना सारा ग्रैटिट्यूड की ब्लेसिंग उसमें भर के दो कि जिसके भी घर में ये जा रहा है उसको बहुत वो फ्लरिश करे, उसकी बहुत ग्रोथ हो, उसके सारे सपने पूरे हो जाएं, उसके माँ बाप बहुत खुश रहें, ठीक है, उसके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ें, जो भी उनको डिजायर्ड एजुकेशन चाहिए, उनके घर में सब बहुत हेल्दी रहे। अब दिया आपने सिर्फ 10 रुपीज है उसको, लेकिन उसमें इतना सैचुरेट कर दिया है ब्लेसिंग कि वो ब्लेसिंग जो आपने उस पैसे में दी है वो वापस आएगी, ठीक है। और दूसरा, पहले तरीका होता था हम किचकिच, क्यों भैया इतने रुपए तो हुए नहीं, प्रेस के कपड़े हैं इतना, आप हमसे 10 रुपए ज्यादा ले रहे हो, ऐसे कर दो। दिस इज हाउ वी हैव बिन ऑल अ लाइफ, ओके। हम रिक्शे वालों से भी बार्गेन करते रहे अभी तक, जबकि हमको पता है कि अ मैन्स पुलिंग अ मैन, इट इज द वर्स्ट काइंड ऑफ अ स्लेवरी दैट वी कैन थिंक ऑफ। लेकिन उनको तो अपनी रोजी रोटी कमानी है ना, तो पैसे तो हमको उनको देने ही पड़ेंगे, तो वो देने भी चाहिए। लेकिन ऐसे में 5 रुपए के लिए इतनी एनर्जी खराब करना अपनी, उसकी वजह से हमारे 50,000 रुपए कहीं से आने रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट वर्क कर रहा होता है पूरे टाइम, सो बी वेरी वेरी अवेयर दैट दिस इज वर्किंग। Okay, so the moment you have become larger than life in terms of giving the money, giving gifts to people, you will see that आपके घर में कैसे छप्पर फाड़ के it will start raining money, you know, सारे मतलब कहीं से नहीं मिल रहा है, अब मतलब एकदम कहीं से अपीयर हो जाएंगे वो लोग आपको पैसा लौटाने के लिए, उनकी लाइफ भी फ्लरिश हो जाएगी। So this is how, that is called that live by them. Okay, it's not just to utter words, thank you for the money, thank you for the money, नहीं, ऐसे नहीं। कैसे आप जी रहे हो, आपका कंडक्ट क्या है, जब आप पैसे दे रहे हो किसी को, जब आप किसी को प्रेजेंस दे रहे हो, वो कंडक्ट क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड लिविंग बाय देम, यू नो। सो दैट्स व्हाट सर जॉन एफ कैनेडी हैड सेड। So we definitely want to use this huge power of gratitude to revolutionize. I've just highlighted that word because this is the key word. We are here to revolutionize our life, not just to change. Change is a very small word. Okay, we don't think small anymore, right? So we are here to revolutionize our health, money, job, relationships, and make small desires को become true करवाओ, big dreams को become true करवाओ। That is what it is. And then अगर हम live by gratitude करेंगे, we will be captivated when you see this life changing knowledge, but without practicing it. So that means practice, 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 ठीक है, simple। और इसके साथ ही इसमें ये जो highlighted point है, that we have to impregnate ourselves and our subconscious mind with it. इतना gratitude बोलो कि subconscious mind में एक नया पैटर्न बन जाए, तो जो पुराने पैटर्न्स पिछले जन्मों के बने हुए थे, मे बी इस लाइफ टाइम के बने हुए थे, बैड रिलेशनशिप के, लैक ऑफ मनी के, प्रॉब्लम्स के, कॉन्फ्लिक्ट्स के, बैड हेल्थ के, वो सब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, बिकॉज वो एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिटेड थे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे ही हम एनर्जी चेंज करेंगे, अब नए पैटर्न्स बन जाएंगे, ओनली देन विल इट चेंज योर लाइफ परमानेंटली, ठीक है। एंड वी आर डेफिनेटली, सो इट सेज दैट अगर आप लगातार करोगे, इट गारंटीज दैट यू विल सी द मैजिक टेक प्लेस इन योर लाइफ एंड फास्ट लाइक दिस, ओके। सो दैट्स हाउ लाइफ विल चेंज and you will love living every day, be excited about starting the new day. ये हमने पढ़ लिया है क्या आफ्टर द 28 days? नहीं, मैं इसको वैसे ही बता देती हूँ, हमारा तो आफ्टर 28 days आता नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारी ये किताब जब तक हमारी लाइफ में एवरी एरिया बहुत अच्छा मतलब रेवोल्यूशनाइज ना हो जाए, तब तक हम मैजिक बुक स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द 28 days आपको क्या करना है, मतलब जब 28 प्रैक्टिसेस, फिर आपको चूज करनी है कि हेल्थ में प्रॉब्लम है तो हेल्थ वाली करो, मनी में प्रॉब्लम है मनी वाली करो, करियर में प्रॉब्लम है वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, मैजिक वॉन्ड करो, ठीक है, एंड मेरा वर्क करो। तो इस तरह से आफ्टर 28 days हमको क्या करना है, बट हमारा आफ्टर 28 days दोबारा से बुक शुरू होगी, तो हमारे लिए ये वाला टॉपिक बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है। निधि अपने आप को म्यूट कर लीजिए,
ठीक है. सो इसमें लिखा हुआ है कि 28 days के बाद वैसे भी we would have rewired our brain and implanted gratitude in the subconscious mind, जहां पे ये हमको याद आएगा. बट नहीं, ऐसा होता नहीं है. 28 दिन में ऐसा होगा नहीं. 28 280 months में शायद हो जाए, है ना. अभी तो नहीं है. बट if we start practicing gratitude the way the books tell us, it will say that the magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. So जो हमारे keywords आज है, ठीक है, is revolutionize, spectacular here. So that is the kind of life we want to build and guarantee that guaranteed it will happen. Okay, so this is the belief we need to. So we'll just do this. We are slightly following ahead, short of time, but हम ये dreams वाला आज करके कल से हम count my blessings शुरू करेंगे. तो बिट्टी जी please पढ़िए. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you to achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or a dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, and the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want to your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, work out the details of their education, including which school you want your school children to attend, the cost of school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you mm, uh, know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down the details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want to improve relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily conditions, be specific about what ways you want to improve your life or body. If you want a dream home, and then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific materials, things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something such as passing an exam, getting a degree, a goal in the sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things
and the big things, or what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to be divided into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things, and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want and you are giving a definite directions to the way you want gratitude's magical power to change your life, and you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on. Yeah, thank you so much, Bitty ji, for reading a lot of the Thank you. content today. Thank you. Thank Thank you, you so ma'am. much. Thank you so Yeah. much. So this is about working on our dreams. So the moment हमने अपनी ड्रीम लिस्ट, और इसमें ड्रीम लिस्ट का कोई नंबर नहीं है, अगर 14 आपके अभी डिजायर्स हैं तो आप 14 लिखो, 20 हैं तो 20 लिखो, 26 हैं तो 26 डिजायर्स लिखो। छोटे सपने हैं, बहुत बड़े सपने हैं, छोटी चीज है, अपने बारे में कुछ चेंज करना है। सपोज आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करनी है, या आपको अपना सेल्फ लव कल्टीवेट करना है, तो उसमें आपको लिखना होगा कि to cultivate a lot of self love and to fall in love with myself. It could be to improve my communication and to be able to talk in front of 100 people with a lot of confidence. Things could be to buy an iPhone 15 Pro. Okay, so it could be to start waking up at 5 a.m. every day with a lot of freshness. So instead of that, please write that what time you want to go to sleep. That's where people slip. Okay, people may not sleep waking up at 5, but they always slip in sleeping at 10 o'clock. So you can work on that. फिर आपको अपना desired body weight करना है. Suppose आपको लगता है I should be of specific pounds or kgs, तो आप वो लिख सकते हो. अगर आपको अपनी body की toning करनी है कि बहुत ही fit, firm, toned body चाहिए, like nice and like more muscles, so आप वो लिख सकते हो. आपको एक डिजायर्ड वेकेशन पे जाना है किसी स्पेसिफिक जगह पे, तो ये पूरा उसमें लिखो कि किसके साथ और कितना, कैसे, कैसी जगह पे ठहरना है, उसके पैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, दैट टू बी एबल टू like रिसीव सो मच मनी सो दैट यू कैन गो फॉर वेकेशन. बट उसका आपको रफ कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि कितना टोटल उसका खर्चा आएगा वेकेशन का, उस कंट्री या उस सिटी में जाने के लिए. ठीक है, कैसे मीन से ट्रैवल करना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, तो उनका कितना टोटल आ रहा है. तो उस हिसाब से अगर आपको अपने बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए भेजना है, तो टोटल उसकी फीस का क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ जाना चाहता है, आपको जो मर्जी, जो आज की जो डिजायर लिस्ट है उसमें करते रहो. और लाइफ एक एक दिन में एक्सपैंड होती है, तो जो लोग ये पहले कर चुके हैं अपनी डिजायर लिस्ट बनाना, उनको दोबारा रिवर्क करना पड़ेगा. और ये जल्दीबाजी में नहीं होगा, ठंडे दिमाग से सोचो, अपने दिल से पूछो, क्वेश्चंस पूछो तो जवाब मिलते हैं. सबकॉन्शियस माइंड को क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं. ठीक है, तो सबकॉन्शियस माइंड से पूछो कि व्हाट इज इट जो मुझे अचीव करना है, जैसे सून जो मुझे बहुत मजा आएगा जिसको, तो फिर आपको ना पता लगने लग जाएगा अंदर से. और जो जब भी क्लटर्ड माइंड हो तब मत पूछना, जब शांत हो तब पूछना. ठीक है, बिकॉज अगेन सबकॉन्शियस माइंड हमारी फ्रीक्वेंसी से बात करता है. तो उस तरीके से एंड देन यू विल गेट योर आंसर्स. या आपके दिमाग में कुछ है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ बैग चाहिए या शूज चाहिए, आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है, कितनी आपको मतलब कितनी इनकम मनी आपको हर महीने रिसीव करना है टोटल एज अ फैमिली. अगर है, इन केस अगर आप होम मेकर हैं और आपका अपना मतलब खुद की पर्सनल अर्निंग नहीं है लेकिन फैमिली अर्निंग तो होती है ना, तो फैमिली अर्निंग कितनी है जो घर में आनी है, आप उसके लिए लिख सकते हो. बिजनेस को आपको नेट प्रॉफिट कहाँ तक पहुंचाना है, लेके जाना है, वो आप कर सकते हो. अगर आपको कोई ब्रांच खोलनी है अपने ही इंस्टीट्यूशन की, जो भी आप चलाते हो, जो आपका एंटरप्राइज है, ऑफिस है, स्टोर है, तो आप वो उसमें लिख सकते हो. अगर आपने अभी तक अपना करियर स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन थिंक अबाउट स्टार्टिंग योर करियर.
ठीक है, वो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछना पड़ेगा, मेडिटेट करो उस पे, यू हैव टू मेडिटेट ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस ओनली देन यू गेट द आंसर, क्योंकि कोई नई चीज शुरुआत करनी है तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, अगर आपको यू वांट टू लुक आफ्टर योर बॉडी एंड हेल्थ एंड यू हैव डिसाइडेड दैट टू गो फॉर एटलीस्ट 1 hour ऑफ अ brisk walk every day, you can write that. So this is what we need to do today. आज हमको अपनी ड्रीम लिस्ट को रीडिजाइन एंड रीडिफाइन करनी है, चाहे हम कितनी भी बाहर पहले कर चुके हैं, बिकॉज लाइफ स्टैग्नेटेड तो रहती नहीं है. मूवमेंट इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड. ओके, इसके अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है. मूवमेंट इज द सेल्स आर मूविंग, द प्लैनेट्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, द विंड इज मूविंग, द प्लांट इज ग्रोइंग. दिखता नहीं है हमको कि कितना कितना माइक्रो सेंटीमीटर एक दिन में ग्रो किया है, बट ग्रोथ इज द ओनली कांस्टेंट, मूवमेंट इज द ओनली कांस्टेंट. सो अगर हमारी लाइफ में भी पिछले महीने अगर हमने अपनी ड्रीम लिस्ट लिखी थी और इस बार हम दोबारा से उसको रीडिफाइन या रीडिजाइन कर रहे हैं, हमारी लाइफ में भी तो मूवमेंट हुआ है ना. तो इसलिए टू ऐड फ्रेशनेस एंड ग्रोथ हमको रीडिजाइन करना चाहिए अपनी ड्रीम लिस्ट को. तो एक बार देखो, सोचो, प्रायोरिटीज चेंज होती रहती है, हमारे भी तो विशेस एक्सपैंड हो गए. पिछले महीने हम जिस तरह के इंसान थे, इस बार हम उससे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, हम उससे ज्यादा वाइज हैं, हम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, है ना. सो उस हिसाब से अपनी करंट स्ट्रेंथ, विजडम और नॉलेज के हिसाब से हमारा बीइंग बहुत चेंज हुआ है एक एक महीने में. सो उस हिसाब से अब अपने जब ड्रीम्स एंड गोल्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको ये ऐड करना चाहिए और ये डिलीट करना चाहिए और 5 और ऐड करने चाहिए. And that's how it is. And the moment you have written them down on a paper, the universe will get a direction as to what to move in your environment and where it needs to move us. मतलब हम स्पेसिफिक जगह पे जाएंगे. सपोज हम किसी पार्टी में जाने का आपको बिल्कुल मन नहीं है किसी दिन, लेकिन यूनिवर्स देयर इज इनर कॉलिंग आपको आएगी कि मुझे वहां जाना चाहिए आज, ठीक है. एंड समहाउ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाएंगे कि आप आज जाओगे, क्योंकि वहां आप किसी से मिलोगे जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो एंड फ्लरिश होगा, यू नो. तो इस तरह से यूनिवर्स को आपका रास्ता, पाथ को पेव करने के लिए, यू नो, इट नीड्स योर विजन. कि मेरा अगर ये विजन है तभी तो मैं उस इंसान से मिलूंगी ना, क्योंकि मैंने अपने गोल लिस्ट में लिखा था कि मुझे ऐसा ऐसा करना है और मेरा वो गोल उस पर्सन के थ्रू फुलफिल हो रहा था, तो यूनिवर्स तो मुझे उस पर्सन से मिलवाएगा ना. So this is how life is. So the moment we have written down our goals, we have given it a direction, and now we are ready to begin the most exciting and thrilling adventure it's been on. Why it's called adventure? Because maza aata hai na, thrill mein maza aata hai. Adventure means that something exciting, something, you know, like larger than life, something that gives you a fun. सो इट्स अ फन एलिमेंट. इसीलिए अपनी जिंदगी को इंजॉय करना सीखो, अपनी हेल्थ को इंजॉय करो, ठीक है, अपने पैसे को इंजॉय करो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें दे आर नॉट देयर फॉर द नॉट फॉर द वेस्ट ऑफ इट, राइट. सो दिस इज हाउ एवरी डे व्हेन यू वेक अप, लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक वाओ, you know, that way. So that is the kind of life we want. So yes, we go to the other book, although we'll not be able to read much of it, but हम करते हैं. हाँ जी, मीतू, hi, good morning. Good morning. Read for us. Yeah. Laird Hamilton. The fear of failure stops people from doing a lot of things. My mom used to have a saying that we are each our greatest inhibitors, that we stop ourselves. Another way we can stop ourselves is to think that there are no good ideas or opportunities left, and use that as an excuse not to make anything of our life. If you think there are no good opportunities, look at how easily Paul or Ophelia found a golden opportunity. While standing in a line to use a library photocopier, Paul or Ophelia saw something that nobody else saw. He thought to himself, if there is a line here, there must be lines in other places. And from that simple observation, the idea of Kinko's was born.
Yeah, so very, very beautifully said here in this Laird Hamilton. The fear of failure stops people from doing a lot of things. है ना? यही लगता है कि मुझसे होगा कैसे, मैं कैसे करूंगी, how can I be? लोग एक अकेले प्लेस A टू प्लेस B से ट्रैवल भी नहीं कर पाते हैं. मतलब इतना फियर और इतना कावर्ड्स हमारे अंदर कावर्डीज होती है. इट्स नॉट आउटसाइड, है ना? हमारे अंदर कावर्डीज होती है. हम 1 किलोमीटर भी नहीं जा पाते हैं, हम दूसरी सिटी नहीं कर पाते हैं. सो बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम. एवरीथिंग नीड्स अ लॉट ऑफ करेज. सो ये फेलियर और फेलियर ही तो होता है हमारे अंदर, जो हमको बहुत चीजें करने से रोकता है. So Laird Hamilton says that my mom always used to say that हम खुद अपने आप के इनहिबिटर्स हैं, हम खुद अपने आप को रोकते हैं. हमने अपने अराउंड एक वॉल बनाई हुई है कि हम सक्सेस को अलाउ नहीं करते, हम पैसे को अलाउ नहीं करते, क्योंकि हमने वो वैसे सोचना ही नहीं देखा है ना? So that we are the ones who stop ourselves. So it says that वो पॉड और फेलियर के बारे में है. So imagine ये इनको मेंटल डिसऑर्डर था, डिसलेक्सिया. सो डिसलेक्सिया वो होता है, हमने देखा था तारे जमीन पर मूवी, है ना? सो डिसलेक्सिया एंड ADHD था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. सो ये दोनों मेंटल डिसऑर्डर होने के बावजूद वो जिंदगी में इन्होंने किनको जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो वर्ल्ड्स बिगेस्ट फोटोकॉपियर चेन है, और इतने सारे स्टोर्स. और वो उनको आइडिया कैसे आया? एक दिन वो लाइन में खड़े हुए थे, उनको अपना कुछ फोटोकॉपी कराना था, ठीक है? और वो फोटोकॉपी नहीं करा पाए, तो उन्होंने सोचा इतनी लंबी लाइन है, इसका मतलब तो हर जगह फोटोकॉपी के लिए लाइन होगी. तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपनी कंपनी ऐसी खोल ली जाए. एंड देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड, है ना? सो दैट इज व्हाट इट इज. सो हम इनके बारे में पढ़ते हैं. हाँ जी मीतू. Fall or a failure. If I have any good attributes, I know how to be in the present. You can't see opportunity if you're not in the moment. बट हम लोग एक्चुअली पास्ट में हुक्ड रहते हैं. सब लोग मोमेंट में कहाँ रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते. मतलब प्रॉब्लम्स भी हमारी लाइफ में क्यों है अभी? अगर आप एक्चुअली देखो कि जो भी इशू है वो पहले वाला है, पहले से आ रहा है वो, ठीक है? वो पहले कभी हुआ था. अगर दिमाग में भी कुछ प्रॉब्लम है, वो पहले कभी हुई थी. तो वो बार बार हम सोच सोच के उसको रिक्रिएट करते रहते हैं, तो वो हमारी पीछा ही नहीं छोड़ता है. और जब तक हम उस अपने आप को अनहुक नहीं करेंगे अपने पास से, और करंट मोमेंट में नहीं आएंगे कि ओके टुडे दीप्ति, व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू? You want to make a presentation on soft drinks and brain health. So that's the webinar I'm taking for office. It's a paid webinar, office का webinar है on 4th. तो मुझे आज क्या करना है? मैं ये थोड़ी सोचूंगी तब ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, ऐसे वो भी सपोर्ट नहीं करते, मुझे बहुत काम हो जाएगा, आगे ये करना है. नहीं, आई हैव टू बी इन द नाउ, दैट दिस इज व्हाट आई हैव टू डू टुडे. आई डोंट हैव टू बी इन द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू बी इन द पास्ट. हाँ, मेरे नाउ से मुझे बहुत सुंदर फ्यूचर क्रिएट करना है. This is my power in the now. That with this now, I will make a presentation today that will mesmerize people, that will give them value addition, and that will give them a lot of knowledge that they can apply, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी हो. बिकॉज मैंने कभी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में इतनी डिटेल में, मतलब गौरी गौरी डिटेल्स नहीं बताई है. बताती रहती हूँ हर बार, बट आई हैव नेवर स्पोकन फॉर 3 hours ओनली ऑन वन टॉपिक ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ब्रेन हेल्थ. सबको बहुत अच्छी ब्रेन हेल्थ चाहिए होती है. सो आई हैव टू बी इन माई नाउ, इन माई टुडे. दिस इज माई प्रेजेंट मोमेंट, दैट आज मुझे बहुत बड़ा टास्क करना है, ठीक है? एंड this is how we go forward. We don't have to think about, too much of it. So that's what he said, that be in the now, right now, be in the present moment. नहीं तो हम कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. So although time हो गया है, but हम ये छोटा सा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, and we'll just take one sharing today. हाँ जी. Michael Acton Smith. Acton Smith. Yeah. A lot of people look at successful people and just shrug it off and say, oh, they have been lucky. But in life, you make your own luck. And when those opportunities come, you are ready to jump on them. Yeah. So we always think, no, like that for so many people. अरे उसकी जिंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो बड़ी खुश है, वो तो बड़ा खुश है, वो बहुत सक्सेसफुल है, उसके पास बहुत पैसा है. We don't know what lies, the hard work that lies behind it all.
आई मीन क्या उन्होंने एफर्ट्स किए हैं, क्या वो है, आई मीन लाइक ऑल दीज पीपल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, प्लस देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज कि उन्होंने कैसे, वो कैसे बढ़े आगे. लुक एट ओपरा विंफ्रीज लाइफ, यू नो, फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे सारे धोबी हैं, मतलब मम्मी धोबी है, उनकी दादी धोबी, उनके नानी धोबी, मतलब सब वो लॉन्ड्री करते थे, मतलब लोगों के लिए, किसी और के लिए, हाथ से कपड़े धो धो के. अब मशीन्स नहीं होती थी उस टाइम, ठीक है. वहां से क्यों ओपरा विंफ्री कहीं कि मुझे कभी भी लॉन्ड्री पर्सन नहीं बनना है, आई वांट टू मेक समथिंग आउट ऑफ माई सेल्फ. एंड देन देयर वर सो मेनी पिटफॉल्स, बट देन शी वाज वेरी क्लियर अबाउट हर गोल. बहुत सारी ऐसी, उनको न्यूज रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनको लोगों की लाइफ में जाके डिफरेंस मेक करना पसंद था. तो उनको लगता था कि क्या मुझे न्यूज रीडिंग के लिए बैठा दिया, ठीक है, वो नहीं पसंद था, बट उन्होंने किया ना, बिकॉज वो न्यूज रीडिंग में ही वो ऐसे इंसान से मिली जिन्होंने उनको रियलिटी शोज दिए, ठीक है. तो इस तरह से सब बढ़ते हैं ना आगे. So there's so many people who actually risen from where they are now, in spite of so many pitfalls in their life. Nobody is lucky, okay? Nobody is lucky. You can't say luck है ना, वो good fortune आपने accumulate किया है अपने thoughts, words and actions के through, ठीक है. इतना आप grateful रहे हो कि वो luck is by your side. कहते हैं ना, the universe has my back. Okay, so आप इतना ज्यादा यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो that now universe has your back. आप कोई भी काम करोगे, anywhere you step, that is the place where you should be. Okay, वैसे भी एक saying है ना, the spring is exactly where you stand right now. So you don't have to seek happiness anywhere outside. Spring is exactly where you stand right now. So जहाँ पे आप खड़े हो वहीं पे spring का फाउंटेन है, ठीक है. कम से कम जहाँ खड़े हो ना वहीं पे गड्ढा खोद लो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेजर के ऊपर खड़े हुए हो. सो जैसे एक बुद्धिज्म है ना, ज्वेल इन द रोब, तो उसको कहा था कि तुम बहुत बड़े अमीर आदमी बनने वाले हो, जाके अपना खजाना ढूंढो, किसी ने उसको कहा, ठीक है. तो वो पूरी दुनिया में घूम रहा है, इधर उधर देख रहा है, पेड़ के पीछे देख रहा है कि कहाँ ज्वेल है, कहाँ मेरे लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी आपको वो ज्वेल मिलने वाला है. और वो ज्वेल पता है कहाँ था, उसके रोब में स्टिच था, दैट डायमंड दैट मेड हिम अ रिच पर्सन. सो यही ना, हम सब कुछ बाहर खोजते रहते हैं, ये ऐसा हो जाए तो ऐसे हो जाएगा, वो वैसा हो जाए. अपने अंदर के ट्रेजर को डिस्कवर करना और उसको एक्शन में लेके आना, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू. सो वी आर, बट इन लाइफ यू मेक योर ओन लक. ये लिखा हुआ है ना सामने, यू मेक योर ओन लक. एंड व्हेन दीज अपॉर्चुनिटीज कम, यू आर रेडी टू जंप ऑन देम, बिकॉज आपको उस लेवल ऑफ विजडम एंड फायर आ जाती है ना, that excitement that I will make it the best. If I'm doing this, I'm going to make it the best. Think more. There might be a failure wanting to tell you something. There might be a failure, you know, like trying to tell you कि इसको ऐसे नहीं वैसे करो, ठीक है, बस इतना ही. And that is the test of time. जब failure आ रही है तो अपना gratitude की डिग्री बढ़ा दो. अपने आप वो ड्यू ड्रॉप्स, जैसे सन आता है तो ड्यू ड्रॉप्स चली जाती है ना, या फायरफ्लाइज नहीं दिखते दिन को स्टार्स दिखते हैं, नहीं दिखते, रहते तो है ना. अभी भी आप स्टार ट्रैकर लाइट से ऊपर देखो तो सारे स्टार्स दिखेंगे, लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि सूरज की रोशनी आ गई है. तो इसी तरीके से हमारी लाइफ में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे होते हैं, सो दे, जब ग्रैटिट्यूड का सूरज उगता है, व्हेन द सन ऑफ ग्रैटिट्यूड राइजेस, ऑल दीज लिटिल इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, दे डिसिपेट and they totally get removed from our life. They might be there, but we don't see them because they don't look like that. The person's still there in your environment, but you're not bothered ना. आपकी frequency इतनी high और आपको अपनी frequency के हिसाब से अपनी life मिलेगी, है ना. तो ऐसे ही तो चलता है. So thank you, Meetu. This is how much we'll be able to read today. Thank you so much. Thank you. So I'm just loving these quotes that these people have mentioned here. Yes, so one, Prima. Okay, please share. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग एंड गुड Morning. मॉर्निंग टू एवरीवन. मैम, मैंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मैं 28 डेज कंसिस्टेंसी से ये प्रैक्टिस करूं, और मैं लास्ट 10 डेज ट्रैवल कर रही थी दुबई. तो ड्यू टू यूट्यूब चैनल ऐसा था कि मैं पूरा 28 डेज प्रैक्टिस कर पाई, क्योंकि सुबह सुबह में जैसे हॉट एयर बलून राइड्स रहती है, तो आई विल नॉट एबल टू अटेंड द सेशंस ऐसा. तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब ये स्टार्ट किया था प्रैक्टिस, और 28 डेज कंप्लीट हो गया कंसिस्टेंसी.
अमेजिंग। बहुत कम लोग होते हैं, मतलब आप लिटरली एक हाथ की फिंगर्स पे गिन सकते हो जो लोग 28 डेज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर पाते हैं। कुछ न कुछ कहीं कोई दिन मिस हो जाता है, कभी तरीके से नहीं कर पाते हैं, है ना। वेरी वेरी गुड प्रीमा। सो लाइफ इज देयर फॉर अस। आई एम श्योर आप देख रहे होगे अपनी लाइफ में डिफरेंस। हाँ मैम, पहले मेरे को शाय हो रहा था, मतलब मैंने कल पूनम दीदी को बोला था कि आप मुझे सपोर्ट करना, मतलब यहाँ पे आके मुझे एक्सप्रेस करने में थोड़ा ऐसा हो रहा था, हेजिटेशन हो रहा था, कैसे करो क्या करूं। हाँ, पर अभी इतना लाइक, अच्छा बोल रहे हो आप, बहुत अच्छा बोल रहे हो। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू पूनम दीदी एंड आप प्रिया जी कि उन्होंने भी सपोर्ट किया। मतलब कुछ कुछ एक्सरसाइज में ऐसा होता है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे करे क्या, तो फिर मैं उनसे कोऑपरेट कर। अपने आप प्रीमा जी, अपने आप समझने की कोशिश किया करो। आप YouTube वीडियो को दोबारा देखो। बहुत आसान होता है कि अगर मुझे भूख लग रही है और मैं किसी और के घर जाके बोलूं कि मुझे खाना दे दो, वो आसान होता है। डोंट लुक फॉर इजी वे आउट, ठीक है। अब तो YouTube पे वीडियोस है ना। सपोज अगर आपको हेल्थ वाला नहीं समझ आया, ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि मैंने बहुत ज्यादा इंग्लिश बोली हो, बिकॉज इंग्लिश लिटरली मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो मैं सोचती इंग्लिश में हूँ, तो इसलिए बार बार मेरे मुंह पे इंग्लिश आ जाती है। बिकॉज मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पे हिंदी बोलने के फाइन लगता था, पैसे देने पड़ते थे हमको, तो इसलिए मुझको एकदम इंग्लिश पे वो हो जाता है। तो लेकिन सीजन 1, सीजन 2, सपोज चैप्टर नंबर 3 है और आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, आप सीजन 2 पे जाके चैप्टर नंबर 2, मतलब जो असाइनमेंट नंबर 3 है, उसको उसको दोबारा सुनो और फिर उसको समझो, ठीक है। ऐसे ही मैं ग्रो की हूँ। मेरे पास कोई वो नहीं होता था। ये किताबें जब मैं पढ़ती थी तो मैं दोबारा पढ़ती थी, फिर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछती थी कि उस सेंटेंस को डिकोड करो, उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर मुझे कहीं और से उसका जवाब किसी और किताब से मिलता था। तो ऐसे ही आप ग्रो करते रहते हो। तो ऐसे ही आप ग्रो करते हो जिंदगी में, है ना। सो जब भी अभी भी कोई मुझे एफर्मेशन चाहिए होती है तो मैं बहुत डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड खोलती हूँ और फिर उसको पढ़ के फिर उस चैप्टर को पूरा पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर वो मनी का चैप्टर होता है तो उसमें उसमें मनी के 3 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से मुझे वो वाली जो वो 1 लाइन चाहिए होती है जो मेरे मतलब की है। मेरा मिस हो गया। हाँ, आई थिंक नहीं, इन्वर्टर पे भी हमारा चलता है। Recording in progress. Oh, sorry. My Ma'am, your network is absolutely fine. You're there, ma'am. And Prima is a very good practitioner. That's like मैं बताना चाहती थी Prima के बारे में. And this is just first month of her practice, ma'am. पहला महीना है. And I remember once we were talking about the नहीं, consistency she thing, ना? did post me a very long message one day. प्रीमा, आपको याद है आपने मुझे टेक्स्ट किया था? हाँ मैम, प्रीमा ने टेक्स्ट किया था एक मैसेज, बहुत अच्छा। सो उससे पता लग रहा है कि लाइक वैसे भी 28 दिन, पता नहीं कितने पीपल कैन रेज हैंड राइट नाउ जिन्होंने किया है। आई मीन देयर नॉट बी टू मेनी हैंड्स रेज्ड। That's नहीं what I कर told her पाते प्रीमा। yesterday. मैंने कहा तुम जरूर बताना. People are struggling with consistency, and she too was. Actually, the thing is, she too was struggling with consistency. She took an affirmation also that how can I I can be consistent, because she knows the essence of these practices, ma'am. So she said कि I need to be consistent in the practices in order to get all these. So she took affirmations also, and she did all the practices like herself. और दुबई में घूमने गई थी मैम, वहां जाकर भी वो प्रैक्टिसेस कर रही थी. एंड शी इज सच अ यूथ, शी इज सच अ यंगस्टर. इस स्टेट में करना इज अ लॉट ऑफ थिंग. तो कल जब वो बोल, मैंने कहा तुम जरूर शेयर करना एंड अपने आप से शेयर करना. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट फॉर यू, यू हैव टू डू इट नहीं योरसेल्फ. नहीं, सो आई एम बहुत लाइक अच्छा kudos to शेयर her. किया है, इतने अच्छे से शेयर, इतने अच्छे से करते हो। सो हैट्स ऑफ टू यू, दिस इज रियली अमेजिंग। बट अच्छा है कि आपकी वजह से मैंने ये चीज भी बताई, दैट डोंट नेवर लुक फॉर रेडीमेड आंसर्स, ओके, struggle to get them for yourself. That will make you grow.
And when you're struggling, when you're being busy finding an answer to your situation or a problem, okay, so कम से कम उसके साथ ये होगा कि आप अपना एक किताब का फोल्डर बनाओगे, ठीक है, जहाँ पे सारी बुक्स होंगी, उनको आप खोलोगे, उनकी वजह से आप पढ़ोगे अच्छे से। वो बहुत आसान होता है, मुझे वो बता दो, या मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो, मुझे ऐसे जाना है, मुझे पहुंचा दो, you know, that's easy, that's not growth. So Prima, congratulations firstly, and I'm waiting कि आप बहुत बड़ी कोई विक्ट्री शेयर करें, बिकॉज इस तरह से इतनी कंसिस्टेंटली, इतनी सिंसियरिटी से कोई करता है ना, तो उसकी जिंदगी में बहुत रेवोल्यूशन आता है, और आपकी लाइफ में आएगा। तो विल बी वेटिंग, एंड हम प्रे कर रहे हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा बदले दैट आपको मजा आ जाए, और जो एरियाज आपके लाइफ में है जो आप बदलना चाहते हो, उसमें आप मतलब लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन देखो, कहते हैं ना, दैट रेडिकल चेंज। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच फॉर शेयरिंग। देयर वाज समवन हु वाज Zoom यूजर लिखा हुआ। वर्षा So- थी मैम, वर्षा। Me, अच्छा, sorry, वर्षा, आंटी के लिए, आंटी को अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मैंने आपको सुबह 4 बजे ही मैसेज इसीलिए कर दिया था, मुझे रात को भी याद था, बट आई वाज नॉट अवेक एट 12 o'clock, नहीं तो मैं डेफिनेटली आपको फोन करती, बट सुबह उठते ही मुझे, या सो प्लीज कन्वे, एंड अगर आंटी है तो विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ, you know, and that she be able to do everything that she desires. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. Thank you प्रीमा ने मैम everyone पूरा so शेयरिंग much. नहीं किया है, प्रीमा ने पूरा Dipti. शेयरिंग नहीं किया है, Mini शी wants हैज, to say वो bye. लिख देना तुम। हेलो रश्मि मैम। Hi. Dipti, How my are you? Dipti, just now my grandson heard कि आपने वो she's saying कहा ना कि she's saying it's nice to be in the original session. Okay. Whatever that means. Control room. It's so beautiful It's to called see you with control ma'am. room. Control Dipti, one room. thing. हाँ, Dipti, मेरा हाँ जी। पोता अभी ही heard कि stars आपने वो देखा like that, तो बोलता मैं भी कैमरा हाँ। लाके stars देखूंगा। हाँ, तो आपको ये करना होगा कि एक स्टार ट्रैकर लाइट करके ऐप है, जो हमको रौनक ने वर्षा को बताया था। रौनक वर्षा का डॉक्टर बेटा जो है, तो हम एक दिन मरीना बीच है चेन्नई वाला, वहां पे खड़े हुए थे, बिल्कुल एज पे, मरीना बीच के एज पे खड़े हुए थे चेन्नई में, और मैं और वर्षा थे, एंड बहुत सुंदर ब्रीज, आसमान इतना सुंदर लग रहा था, मरीना बीच इज स्टनिंग, ओके, और उसके सामने बहुत सुंदर बिल्डिंग्स थी, आई थिंक वहां का विधानसभा या पता नहीं क्या, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो उसके बाद वी वर बोथ एंजॉयिंग दैट ब्रीज, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू गो बैक फ्रॉम देयर। ब्यूटीफुल स्काई, क्रिस्टल क्लियर, यू नो, ब्रीज इतनी सुंदर, सी वेव्स इतनी, सी ऐसा लग रहा था गोल्डन सिल्वर लाइट उस पे पड़ रही है, एंड इट वाज, यू नो, तो उसके बाद वो रौनक आ गया थोड़ी देर में, अपना काम खत्म करके, वर्षा का बेटा आ गया, एंड 3 of us were there, and then I was just admiring कि ये वाला स्टार, वो वाला this, and then he showed us that you know, the moon picture and the star tracker light, and then he downloaded it for me on my phone, and उसके बाद से आई थिंक कोई भी दिन ऐसा नहीं हुआ है जब मैंने कॉन्स्टिलेशंस को, मून को करीब से, स्टार्स को, वीनस को, सैटर्न, यूरेनस, इन सबको पास से नहीं देखा हो। इनफैक्ट आज भी देखा, आज भी मुझे सैटर्न और वीनस नजर आए, और एक कॉन्स्टिलेशन था जिसका, और एक स्टार था जिसका नाम था लियो, वो दिखा, और एक वो रेनडियर टाइप का, वो जो एक और है ना, एक पता नहीं गैलेक्सी है, वो देखी। सो टुडे आल्सो आई सॉ इट, एंड वो स्टार ट्रैकर लाइट आई थिंक हम सबके फोन पे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप, वो होना चाहिए। सो आप प्लीज अपने ग्रैंडसन को वो ऐप डाउनलोड करके दिखाइए, ऐप स्टोर में जाके आप उसको आज ही डाउनलोड करो अभी, और वो आपको अभी दिख जाएगा सरिता जी। मतलब स्टार्स तो है ना, वो तो सूरज की रोशनी की वजह से नहीं दिख रहे हैं, तो आप उसको स्टार ट्रैकर लाइट को ऐसे आप खोलोगे तो आपको ये ऐसे ऊपर नजर आ जाएगा। And this is the treasure. I always get treasures through Varsha, and this was another treasure that I got from her. Yesterday I was telling ना कि इसका घर मेरा मायका है, ये इस तरह से ये दिखता है। So it will tell you कि ये stars के नाम के साथ वो आ जाता है, and your grandson will love it and get him in love with these stars, and you know, अभी से इसको याद होने लग जाएंगे कि वो आज Venus bright star है,
ये वैसा दिखता है, प्लूटो थोड़ा छोटा दिखता है क्योंकि धरती से बहुत दूर है ना, प्लूटो लास्ट है. So this is how, you know, every star has got a name on that lap. And I so love Varsha and Ronak for it. वैसे भी I love them. Yeah, that day आपने कहा था तो मेरा बेटा ने डाउनलोड कर लिया था. Yeah, अभी at you present he's not here. Yeah, इसको दिखाता है वो कभी कभी. हाँ, he's going to love it. Yes, thank Okay, you, ma'am. guys, Ma'am, bye bye, ma'am, and then thank you so much. I've Dipti got to ma'am, go today. there is one more Yeah? sharing. मैं भूल गई थी. हाँ मैं ना हाँ बोलिए. दुबई One second. हाँ जी प्रीमा, आप बोलिए. मैम, मैं दुबई ट्रिप पे थी ना, तब मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था कि सब मुझे बोल रहे थे वहां पे अभी ज्यादा हॉट वेदर होगा. आई वाज कि मैं इतना मस्त वेदर एंजॉय कर रही हूँ और इतना प्लीजेंट वेदर है. तो ऑल ऑफ सडन लाइक लास्ट डे था, सब मतलब तब तो प्लीजेंट ही वेदर था और सब अच्छे से हो गया. और लास्ट डे पे बारिश भी हुई. तो आई वाज लाइक कि दुबई में साल में 1 या 2 बार बारिश होती है. तो ऐसा था, लास्ट डे पे बारिश हुई तो आई वाज लाइक सबने सब देखा, मैंने तो दुबई जाके बारिश देखी. You've become an alchemist, huh? Wonderful. Yes. Congrats. That's really beautiful. और इतनी गर्मी में बारिश कर दिया आपने, अब आप कुछ भी कर सकते हो. Yes. Thank you, ma'am, for your blessings and love. Oh, thank you so Thank you, much. ma'am. Bye Thank you, bye. ma'am. See Thank you you. all Thanks a tomorrow with a lot. fresh determination this time to complete all 28 chapters and 28 Thank you. assignments. Thank you, Thanks. ma'am. Thank you. Absolutely. Absolutely. Thanks. Was a Thank brilliant you day. so much, Thank Dipti. Have a you. very Bye. beautiful day. Thank you, ma'am. Thank you, Bye-bye. ma'am. Thank you.